Hello, my dear students. How are you all? Welcome back. I hope all of you have a great short break and all of you have enjoyed your short vacation with study. Yes, I hope all of you have revised the content which you have learned till now. Okay, so with this positive attitude, with this energetic mind, let's continue our next tutorial classes. Okay, so which chapter we are learning? We are in the chapter 2, that is periodic classification of elements. Okay, and till now we have learned two videos, that is first, in very first video what we have learned, that is we have learned about Dobereiner triads. So according to Dobereiner, what he did, he made some group of three elements each having similar chemical properties and he called them triads. Okay, then he arranged the three elements in a triad in an increasing order of their atomic masses and showed that the atomic mass of the middle element was approximately equal to the mean of the atomic masses of the other two elements. Okay, so then we have taken some example to understand this concept. Okay, then in a very first video what we have learned about a second topic, that is Newland's law of octaves. So here what we have learned, that Newland found that every 8 element had properties similar to those of the first element. Okay, yes, and he called the similarity observed in the 8th and the first element as the law of octaves. Okay, yes, then in the Newland's law of octaves there were some limitation which we have learned. Okay, this is all about our first tutorial video of this chapter. Okay, then in the last class, that means in the second tutorial video, what we have learned, that we are going to revise now. Okay, so I hope all of you have a textbook. Please, whenever you will watch the tutorial video, you have to sit with your textbook so that you will understand each and every concept very easily. Okay, yes, so here in the page number 17, what is there, that is Mendeleev's periodic table. So in the second video we have learned Mendeleev's periodic table. What is that? So Mendeleev considered the fundamental property of elements, that is the atomic mass, as a standard and arranged 63 elements known at that time in an increasing order of their atomic masses. Okay, सो मेंडेलीव ने क्या किया, उन्होंने 63 एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस उन्होंने अरेंज्ड किया इन द पीरियोडिक टेबल. ओके, then Mendeleev organized the periodic table on the basis of the chemical and physical properties of elements. तो उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मासेस को ध्यान में नहीं रखा. Then what he did, उन्होंने chemical and physical properties को भी ध्यान में रखा. एलिमेंट्स के केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मासेस को ध्यान में रखते हुए उन्होंने 63 एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल में प्लेस्ड किया. ओके, then you all know that the vertical column in the Mendeleev's periodic table are called as what? Groups. Okay, yes, while the horizontal rows are called as periods. Yes, then we have learned some merits of Mendeleev's periodic table. Okay, so the first merit is like atomic masses of some element were revised so as to give them proper place in the periodic table in accordance with their properties. So Mendeleev ने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस को रिवाइज्ड किया. ओके, so that what, this element will get proper places in the periodic table accordance with their properties. ठीक है, yes, then Mendeleev kept vacant place in the periodic table for elements not discovered till then. ओके, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया, दैट इज कुछ वैकेंट प्लेसेस भी रखा उन्होंने पीरियोडिक टेबल में. किसके लिए? जो एलिमेंट्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे उसके लिए. ठीक है, देन द थर्ड पॉइंट इज व्हाट, मेंडेलीव क्रिएटेड जीरो ग्रुप for some elements. They are called as noble gases. Okay, group number 18. Yes, तो उन्होंने एक जीरो ग्रुप भी क्रिएट किया. सो दे आर द दिस आर द मेरिट्स.
Then what about demerits of Mendeleev's periodic table? That is, the whole number of atomic mass of the elements cobalt and nickel is same. कोबाल्ट एंड निकेल का जो एटॉमिक मास, नंबर ऑफ एटॉमिक मास था, वो क्या था, सेम था. सो देयरफॉर व्हाट हैपेंड, उनको पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर प्लेस करें, उनकी जगह क्या होगी, तो इसके रिलेटेड, उनके सीक्वेंस को रिलेटेड कुछ तो कंफ्यूजन था. Okay, so that is called as demerit, which means what, drawbacks. Okay, then the second is isotopes were discovered long time after Mendeleev put forth the periodic table, so a challenge was posed in placing them in Mendeleev's periodic table. Okay, then the third is when element arranged किए, जब element arranged किए increasing order में according to their atomic masses, the rise in atomic mass does not appear to be uniform. जो rise होती है atomic masses में, जो increasing atomic masses जो होता है, उसमें क्या हुआ, उसमें यूनिफॉर्म, वो यूनिफॉर्म नहीं था. ठीक है, it does not appear to be uniform. And there is confusion related to the position of hydrogen in the Mendeleev's periodic table. So this is all about our last two videos which we have learned, okay, before your short break, before your short vacation. Yes, so now we are going to learn today about modern periodic law. Okay, modern periodic law क्या होता है ये, let's see. So in 1913, the English scientist Henry Moseley demonstrated with the help of the experiments done using X-ray tube that the atomic number of an element corresponds to the positive charge on the nucleus or the number of protons in the nucleus of the atom of that element. Okay, तो in 1913 में हेनरी मोस्ली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, विद द हेल्प ऑफ एक्सरे ट्यूब, दैट उन्होंने ऐसे बोला कि जो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट होता है वो किससे करस्पॉन्ड होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं न्यूक्लियस में उससे करस्पॉन्ड होता है, और द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, यू ऑल नो दैट न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ number of protons, electrons, yes, protons, which means what, positive charge. Okay, so the atomic number of an element is corresponds to what, positive charge on the nucleus or the number of proton in the nucleus. सेम ही हो गया, पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स. ओके, तो उन्होंने ये बोला, दिस इज रिवील्ड दैट द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट दैन इट्स एटॉमिक मास. तो उन्होंने क्या बोला कि द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स जो है वो किस पे डिपेंड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर. ओके, उन्होंने एटॉमिक नंबर को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया रादर दैन एटॉमिक मास को. ठीक है, किसने, हेनरी मोस्ली ने. ओके, देन the statement of the modern periodic law was stated as follows, that is, the properties of elements are a periodic function of their atomic number. Okay, जैसे कि मैंने बोला उन्होंने atomic number को ज़्यादा preference दिया, तो properties of element वो किस पे based होते हैं, atomic number. ऐसे उन्होंने एक periodic law state किया. Okay, yes. So you all know that the scientific world did not know anything about the interior of the atom when Mendeleev put forth the periodic table. ये जो scientific world था तो उसमें क्या था, एटम से रिलेटेड साइंटिस्ट को कुछ पता नहीं था बिफोर Mendeleev put forth the periodic table. After the discovery of element क्या हो गया, scientists started exploring the relation between the electron number of an atom and their atomic number. जब मेंडेलीव ने ये पुट फोर्थ किया, मेंडेलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया, आफ्टर दैट क्या हो गया, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई. एंड फिर बाद में साइंटिस्ट क्या करने लगे, साइंटिस्ट स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ एन एटम एंड द एटॉमिक नंबर. ओके, एंड द एटॉमिक नंबर इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल ओनली इंडिकेटेड द सीरियल नंबर ऑफ द एलिमेंट. तो एटॉमिक नंबर क्या होता है, सीरियल नंबर, जैसे कि 1 2 3 4. yes, so same like that. So this question mostly asked in exam, that what is the statement of modern periodic law.
तो क्या बोलेंगे, एटॉमिक नंबर को ध्यान में रखेंगे, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स, विच मीन्स प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड होते हैं, ठीक है, यस। देन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल. Okay, the classification of elements resulting from an arrangement of the elements in an increasing order of their atomic numbers in is the modern periodic table. Okay, तो modern periodic table में क्या होता है, elements कैसे distribute किए हैं according to the increasing order of the atomic numbers. Okay, yes, the properties of elements can be predicted more accurately with the help of the modern periodic table formed on the basis of atomic number. तो सब जगह आपको बस एक ही ध्यान में रखना है, modern periodic table is based on what, atomic numbers of element. Okay, yes. Then the modern periodic table is called as long form of periodic table. Okay, in modern periodic table the elements are arranged in accordance with their atomic number. फिर से वही बात दिया है टेक्स्ट बुक में कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, जिसमें एलिमेंट्स अरेंज किए हैं अकॉर्डेंस विद द एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. ओके, एज ए रिजल्ट मोस्ट ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल अपीयर टू बी रिमूव्ड. हाउएवर the ambiguity about the position of hydrogen is not removed even in the modern periodic table. तो इसकी वजह से क्या हो गया, जो मेंडेलीव ने जो ड्रॉबैक्स दिए थे, जो डीमेरिट्स दिए थे, वो क्या हो गए, रिमूव हो गए. बट एक जो ड्रॉबैक था वो मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन का पोजीशन, वो अच्छी तरह से हाइड्रोजन के पोजीशन को अच्छी तरह से रिवील नहीं कर पाए. ओके, तो वो जो एक कन्फ्यूजन था कि हाइड्रोजन को कहाँ पर प्लेस्ड करें, वो इसमें कुछ उसका कुछ नहीं हुआ. ओके, इज नॉट रिमूव्ड इवन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. वो जैसा था कन्फ्यूजन वैसा ही हो गया, ठीक है. देन we have seen in the previous standard that the electronic configuration of an atom, the way in which the electrons are distributed in the shells around the nucleus. Okay, तो आपको पता है कि जो शेल्स होते हैं इसके अराउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, लाइक दैट. ओके, then it is determined by the total number of electrons in an atom is same as the atomic number. तो आपको पता है कि उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स विच मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज विच मीन्स इलेक्ट्रॉन्स. यस, the relation between the atomic number of an element and its electronic configuration is clearly seen in the modern periodic table. Okay, तो जो रिलेशन है बिटवीन एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हम किस में देखेंगे, इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, यस. सो now we are going to see a very interesting topic which is very interesting and it is easy also if you have understood this concept ना. जब आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अगर आपको समझ में आ गया ना, दैट मीन्स आपको हाफ चैप्टर 60% चैप्टर आपका हो गया. ओके, सो यू हैव टू पे अटेंशन वॉट एवर आई एम सेइंग, ठीक है. And this is very important if you want to learn this chapter very nicely. This periodic table is very important and अगर आपको ये periodic table आ गया मतलब आपका 50 to 60% chapter done, ठीक है. Yes, so this is a structure of modern periodic table. Okay, तो modern periodic table में क्या क्या है हम डिटेल में देखने वाले हैं, but before that we are going to see some basic. Okay, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है, एटॉमिक नंबर. एटॉमिक नंबर मतलब आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले ध्यान में रखो कि जैसे कि मैंने बोला हॉरिजॉन्टल रोज. हॉरिजॉन्टल रोज मतलब कैसे, उसको क्या बोलेंगे, यस, हॉरिजॉन्टल रोज, रिमेंबर. यस, सो दीज आर द हॉरिजॉन्टल रोज. हॉरिजॉन्टल रोज विच मीन्स व्हाट, ऐसे 1, ये हो गया 2, ऐसे स्ट्रेट लाइन जाने का, ऐसे 3. ओके, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और ये हो गया 7. हॉरिजॉन्टल रोज विच मीन्स पीरियड्स.
Okay, there are 7 periods in the modern periodic table. Okay, you have to see this line. You have to go according to the atomic number. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, यहाँ पे आप देखेंगे तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है. तो ऐसे आपको जाना है, ऐसे ऐसे लाइन में, ऐसे स्ट्रेट लाइन में. ठीक है. सो द हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड एज पीरियड्स एंड देयर आर 7 पीरियड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. एंड ये जो ऐसी जो लाइन है ये आपको दिखाई दे रही है, ऐसे हीलियम की तरफ हाइड्रोजन से एक ऐसी 1 लाइन हो गई, फिर बेरिलियम से ऐसी 2nd लाइन हो गई. तो ऐसे यहाँ पे देखोगे आप 1 2 3 4 5 6 टू लेके 18 तक ऐसे जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको बोलेंगे ग्रुप्स. ठीक है. एंड देयर आर 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ओके, 18 ग्रुप्स हैं एंड 7 पीरियड्स है. ठीक है. यस. देन दिस इज एटॉमिक नंबर लाइक 1, यहाँ पे भी इसके ऊपर दिखेगा 2. ओके, इसके ऊपर दिखेगा, लिथियम के ऊपर क्या दिखेगा आपको 3. ओके, फिर बेरिलियम को 4. ठीक है. तो ये हो गया. ऐसे इसके ऊपर जो दिया है उनको क्या बोलेंगे एटॉमिक नंबर. एंड वी हैव 118 टिल 118 वी हैव एलिमेंट्स. ओके, तो 118 एलिमेंट्स हमारे पास है इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. फिर उसके बाद दिया है सिंबल. सिंबल विच मीन्स यहाँ पे देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या है H. ओके. देन हीलियम का सिंबल क्या है He. देन लिथियम का सिंबल क्या है Li. देन बेरिलियम इज Be. देन दिस इज बोरॉन. ओके, that we have to call this is as B. the symbol is B. then कार्बन को क्या बोलेंगे C. then नाइट्रोजन का सिंबल क्या है N. then ऑक्सीजन का सिंबल क्या है O. फिर फ्लोरीन का क्या है F. and then नियॉन का क्या है Ne. so like that these are the symbols which are given. तो आपको ध्यान में क्या रखना है सिंबल, बट उसके नेम भी आपको ध्यान में रखना है, बिकॉज अगर नेम आएंगे तभी आपको सिंबल आ जाएंगे. ठीक है. देन उसके बाद दिया है उसका नेम. अगर यहाँ पे लिथियम है तो उसके नीचे देखो उसका नाम दिया है, दैट इज LITHIUM लिथियम. ठीक है. यस. एंड देन उसके बाद में उसका एटॉमिक मास दिया है. ओके. तो आपको ये जो सारे एलिमेंट्स हैं उसके सिंबल ध्यान में रखना है, बट आप इन सबको रीड करो. रीड नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा. आपको सिंबल बहुत अच्छी तरह से ध्यान में रखना है. ओके. एंड टिल the 36 elements it is very important. first 36 elements are very important. okay, you have to remember this. ठीक है, सब करना ही है बट 36 तक आपको पक्का आना चाहिए. ओके, तो ये रिमेंबर कैसे करेंगे. सो आई हैव प्रिपेयर्ड लिटिल सॉन्ग फॉर टिल एट एलिमेंट्स 36 टिल द यस एलिमेंट नंबर 36. तो आप ध्यान में रखो. एंड आई एम गोइंग लाइक दिस H and H E से हम जाएंगे. ठीक है. ओके, so here is a song which I am going to here is a very little song. okay, so now let's see. hey hello. hey means what H. hey का H लिया और hello का HE लिया. ठीक है. now pay attention to words this period number 2. okay, yes. so period number first में हम लोगों ने क्या किया hey and hello. okay, then the period 2 that is ली बी सी एन ओ एफ नी. ध्यान में रखो. हाँ, ली बी. ओके, यहाँ पे है ली बी सी एन ओ एफ नी. नामक अल सी पी एस सी आर और नामक अल सी पी एस सी आर और के का एस सी टी वी सी आर एम एन FECONICUZN गा गी अस से बढ़कर. ओके, तो क्या किया हे हेलो ली बी सी एन ओ एफ नी नामक अल सी पी एस सी एल और के का एस सी टी वी टी आई सी के का एस सी टी आई वी सी आर एम एन FECONICUZN गा गी अस से बढ़कर. ओके, तो ये एक शॉर्ट जो मैंने किया है आपको अपने ट्रिक्स लगाना है और इससे करना है.
ठीक है। अगर आपको ये ग्रुप का कुछ चाहिए तो ऐसे ध्यान में रखो, दैट इज हेलीना की रब से फरियाद। ओके, हेलीना की रब से फरियाद। देन इन द सेकेंड ग्रुप, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, ऐसे आप ध्यान में रख सकते हो। देन हियर द 17 ग्रुप कंसिस्ट ऑफ हेलोजेंस। तो आपको कैसे ध्यान में रखना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपको ध्यान में रखना है। दैट इज फर्स्ट क्लास बिरयानी आई एट एंड इट वॉज वेरी टेस्टी, लाइक दैट। देन आपको 18 ग्रुप अगर ध्यान में रखना होगा तो ये एक नाम है, ऐसे ध्यान में रखो, दैट इज ही नी अड़कड़ जीरन ओक। ओके, so these are some tricks. You have to prepare your own song or something else, but you have to learn this. ठीक है, okay. Then these two groups they are called as S block. Then this whole middle वाला 3 to 12 they are called as D block. Then 13 to 18 they are called as P block. And ये जो नीचे है F block के एलिमेंट्स, ये यहाँ से लिया है, दैट इज़ 57 to 71 एंड 89 to 103। तो ये जो 14 एलिमेंट्स है ये एक ही बॉक्स में कैसे प्लेस्ड करेंगे, इसलिए इसको नीचे रखा है एंड इसको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक। ठीक है, ओके। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लेट्स सी। सो in the modern periodic table consist of 7 horizontal rows which are called as periods, that is 1 to 7। जैसे कि मैंने बोला 1 2 3 4 ऐसी स्ट्रेट लाइन जाएगी जो पीरियड्स है उसको बोलेंगे पीरियड्स। ठीक है, देन सिमिलरली द 18 वर्टिकल कॉलम्स इन दिस टेबल दे आर कॉल्ड एज ग्रुप 1 to 18। ओके, ये जो वर्टिकल ऐसी लाइन जो है उनको क्या बोलेंगे, ग्रुप 1 to 18। ओके, ऐसी लाइन। ठीक है, then the arrangement of the periods and groups result into the formation of boxes। okay, so एक एक एलिमेंट को एक एक बॉक्स दिया है। ओके, सब जगह आप देखोगे तो एक एक एलिमेंट को एक एक बॉक्स दिया है। yes, then atomic numbers are serially indicated in the upper part of the boxes। जैसे कि मैंने बोला ये अगर हाइड्रोजन है तो उसके ऊपर एटॉमिक नंबर उसका दिया है, ऐसे सब जगह एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर उसके ऊपर दिए हैं। ओके, ईच बॉक्स करस्पॉन्ड्स टू द प्लेस फॉर वन एलिमेंट। ओके, ईच बॉक्स को एक एक एलिमेंट को एक एक बॉक्स दिया है। ठीक है, यस। अपार्ट फ्रॉम दिस 7 rows, the 2 rows are shown separately at the bottom of the periodic table and these are called lanthanide series and actinide series respectively। जो F ब्लॉक है उसको क्या बोलेंगे, उसके एलिमेंट को बोलेंगे लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज। ओके, देन there are 118 boxes in the periodic table including the 2 series। ठीक है, तो ये सब मिला के कितने बॉक्सेस हैं, 118। दैट मीन्स वी हैव 118 एलिमेंट्स। ओके, it means that there are 118 places for elements in the modern periodic table। yes, very recently formation of a few elements was established experimentally and thereby the modern periodic table is now completely filled। okay, yes, ऑल द 118 एलिमेंट्स आर नाउ डिस्कवर्ड। तो आप देखोगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक भी जगह खाली नहीं है, सब में क्या है, एलिमेंट्स भरे हैं। यस, देन द एंटायर पीरियोडिक टेबल इज डिवाइडेड इनटू 4 ब्लॉक्स एज आई हैव टोल्ड, दैट इज दिस 2 ग्रुप्स आर एस ब्लॉक, देन दिस मिडल वाला पार्ट इज व्हाट, डी ब्लॉक, देन दिस पार्ट इज कॉल्ड एज पी ब्लॉक एंड ये जो एलिमेंट्स है जो नीचे रखे हैं, नीचे लिखे हैं, उनको क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक। ओके, द एस ब्लॉक कंटेन्स द ग्रुप 1 and 2। यस, द ग्रुप्स 13 to 18 कंसिस्ट ऑफ पी ब्लॉक, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, द ग्रुप्स 3 to 12 कंसिस्ट ऑफ डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक डी ब्लॉक, while the lanthanides and actinide series are at the bottom from the F block। ठीक है, F block lanthanides and actinide series लिखे हैं। ठीक है, एंड द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ये जो डी ब्लॉक्स के एलिमेंट्स हैं उनको क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यस, देन अ zigzag लाइन कैन बी ड्रॉन इन द पी ब्लॉक ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आप यहाँ पे देखोगे अच्छी तरह से तो यहाँ पे आपको एक zigzag लाइन दिखेगी। ये देखो, ये यहाँ से बोरॉन से लेके लास्ट एलिमेंट तक यहाँ तक आपको एक zigzag लाइन ऐसी दिखेगी। तो
ये किस में है, पी ब्लॉक में है. The three traditional types of elements can be clearly shown in the modern periodic table with the help of zigzag line. तो कैसे शो किया है? The metalloid elements lie along the border of this zigzag line. तो ये जो zigzag line के ऊपर और ये साइड ऐसे जो इसके साइड में जो है एलिमेंट्स, तो उनको क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स. ओके, जो जिगजैग लाइन के यहाँ पे बॉर्डर में लाई करते हैं उनको बोलेंगे मेटलॉइड्स. देन ऑल द मेटल्स लाई ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द जिगजैग लाइन. सब मेटल जो है वो यहाँ पे दिखाई देंगे. दीज आर ऑल कॉल्ड एज मेटल्स. ओके, एंड जो राइट हैंड साइड में होंगे दे आर कॉल्ड एज नॉन मेटल. ठीक है, तो जो जिगजैग लाइन के ऊपर है उनको बोलेंगे मेटलॉइड, जो लेफ्ट साइड में है उनको बोलेंगे नॉन मेटल्स, जो राइट साइड में है उनको बोलेंगे, जो लेफ्ट साइड में है उनको क्या बोलेंगे, मेटल्स, एंड जो राइट साइड में है उनको बोलेंगे नॉन मेटल्स. ठीक है, ओके. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे वी हैव लर्न द स्ट्रक्चर ऑफ periodic table, which is very important, and we have learned the modern periodic law. Okay, yes, so periodic table is very important. You can use your own tricks, you can use your some kind of use your brain here and prepare something to remember the remember the elements in the periodic table. Okay, this is very important. ओके, सो प्रैक्टिस डे सैटरडे संडे है, आप सारे एलिमेंट को लर्न कर देना. 36 तक वेरी इंपॉर्टेंट है. एंड ध्यान में रखना पी ब्लॉक में क्या है, एस ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, एफ ब्लॉक में क्या है. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस एवरीथिंग. ओके, थैंक यू.